Hello students, welcome to Kalam Study Center. So in this lecture, we will start business communication topic of subject English. Okay. In previous English lecture, I had already discussed about syllabus. Okay. So in this lecture, we will start topic business communication. In business communication, we will see only basics of communications. Okay. So let's start the lecture. Before that, if you are not subscribed to our channel, then subscribe to our channel fast and press the bell icon for get notification. Okay. So let's start the lecture. Okay. So in communication, what is mean by communication? Okay. So communication is a two-way process. Okay. कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस ओके कम्युनिकेशन तो एक टू वे प्रोसेस है वो एक तरह से नहीं हो सकता उसके लिए दो लोग चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये वन वे प्रोसेस है इसे हम कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते क्योंकि मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ आप मुझसे थोड़ी बात कर रहे हैं तो ये वन वे प्रोसेस है इसी तरह अगर दो लोग बात कर रहे हो उसे कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं ओके सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. It is the process of exchanging information, ideas, thoughts, or feelings between individual or groups. Okay, communication is the process of exchanging information. We can exchange our information through communication, ideas, thoughts, or feelings between individual or groups. Okay, communications can occur in groups or can occur in two people also. Okay, then effective communication involves clarity, active listening, and feedback to ensure understanding. Suppose now I will teaching to you in online mode. Okay, by video medium. Okay, so if I am teaching you in classroom, okay, then it will happen in effective communication. Okay, effective communication means क्या involves effective communications involves clarity, okay, active listening and feedback to ensure understanding. Okay, if I am teaching you in classroom अगर मैं आपको classroom में पढ़ा रहा हूँ okay in offline mode okay so मुझे ऐसा पढ़ाना होगा कि आपको clarity आए okay हमें मतलब मेरे और आपके बीच ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसमें क्लैरिटी हो एक्टिव लिसनिंग हो आपको वो अच्छे से सुनना पड़ेगा एंड फीडबैक देना पड़ेगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं ओके टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग ओके आप अभी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जैसे देते हो वैसे ऑफलाइन वे में आपको मुझे फीडबैक देना पड़ेगा सो ये क्या हुआ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन अस ओके then communication helps in building in relationship okay communication also helps in building relationship decision making okay if you are taking some important decision then it will easy by communication okay and problem solving okay many of our problems are solved by communications okay we can discuss our problem to our parents okay or brother or sisters okay etc then next point is key elements of effective communication okay here are some key elements of effective communication first is clarity okay so what is meant by clarity convey the message clearly okay ऐसा मतलब क्लियरली मतलब क्या आपको वो समझना ही चाहिए ऐसा मैसेज आपको देना है मतलब आप किसी को मैसेज दे रहे हो तो वो आपको क्लियरली देना पड़ेगा उसको वो समझना ही चाहिए ओके क्लैरिटी इज द एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन देन लिसनिंग एक्टिवली अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से सुनना ही पड़ेगा ओके दिस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन देन एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस बिहाइंड द मैसेज ओके आपको कोई उसकी स्टोरी बता रहा है या फिर उसकी जिंदगी में क्या दुख है उसके बारे में बता रहा है तो आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे उसके इमोशंस क्या है ओके एम्पैथी इज द फैक्टर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन देन फीडबैक ओके इंश्योरिंग द मैसेज वाज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड करेक्टली ओके जो मैसेज आप सुन रहे हो वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ओके और उसके बारे में आप फीडबैक भी दे सकते हो ओके सो नेक्स्ट वन इज importance of communication okay there are so much importance of communication in our daily life okay हमारा दिन कम्युनिकेशन से ही शुरू होता है और कम्युनिकेशन से ही एंड होता है हम किसी ना किसी से तो बात करते ही रहते दिन भर okay without communications there is nothing to happen okay first importance is personal relationship communication fosters trust understanding and emotional connection in personal relationship okay communications helps to helps for trust okay फोस्टर्स मतलब बढ़ावा देना कम्युनिकेशन किसको बढ़ावा देता है ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल कनेक्शन इन पर्सनल रिलेशनशिप ओके देन
this is the importance of communication, personal relationship. Then second one is professional success. Okay, so how communication works in professional success in the workplace. Clear and effective communication enhance teamwork, boost productivity, and ensure smooth workflow. Suppose for example, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, ओके, आपकी कंपनी में 4 लोगों की टीम है, उसमें एक टीम लीडर है और 3 लोग उसके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। ओके, सपोज आपको आपके जो हेड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मतलब जो बॉस है आपके, ओके, उन्होंने आपको क्या कुछ तो काम दिया, आपकी टीम को 4 लोगों को आपको काम दिया है और आप उसके लीडर हो। ओके, सपोज आप लीडर हो, ओके, और 3 लोग आपके हाथ के नीचे, मतलब आपके नीचे आपके अंडर काम कर रहे हैं। ओके, मतलब जो आप जो बोलोगे वो लोग वही करेंगे। ओके, सो प्रोफेशनल सक्सेस में कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है। ओके, क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको उनको अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या कहता है, एनहांस द टीम वर्क, आपका टीम वर्क अच्छी तरह से होगा। बूस्ट प्रोडक्टिविटी, आपको वो काम करने के लिए प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, मतलब वो काम आप मन लगा के करोगे। एंड इंश्योर स्मूथ वर्क फ्लो, ओके, वर्क फ्लो भी इंश्योर होता है, मतलब बढ़ता है और आपका काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, so this is importance of communication in professional success. Then education. Okay, in education, setting communication enables knowledge transfer and collaboration between student and teacher. जैसे कि हम कर रहे, ओके, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके, मैं आपको नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ, ओके, और वो नॉलेज आप गेन कर रहे हो। ओके, दिस इज कोलेबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स। ओके, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा ही स्टूडेंट्स हूँ। ओके, आई एम ऑल्सो लर्निंग लाइक यू। ओके, सो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं एक आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप नॉलेज ले रहे हो। ओके, दिस इज कोलेबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स। ओके, कोलेबोरेशन बिटवीन अस। ओके, देन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. So the communication process involves several key components. First one is sender, message, medium, receiver, feedback, and context. These are 6 components of communication. Okay, let's see one by one. The sender. What is meant by sender? The person or entity initiating the message. मतलब जो मैसेज देने वाला होता है उसे हम सेंडर कहते हैं। देन मैसेज, द इंफॉर्मेशन, आइडिया और इमोशन बीइंग कम्युनिकेटेड, जो मैसेज है, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ आइडिया है, दैट्स बीन कम्युनिकेटेड, दिस इज कॉल्ड मैसेज। ओके, आप देखो अभी कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट्स है। ओके, किस किस फॉर्म में कम्युनिकेशन ट्रांसफर होता है। सपोज 2 लोग बात कर रहे हैं, तो जो बात करने वाला है वो सेंडर, मैसेज जो हम वो बात करने वाला है जिसके बारे में, द इंफॉर्मेशन, आइडिया और इमोशन बीइंग कम्युनिकेटेड। मीडियम, वो किस मीडियम में बात कर रहा है, वो फोन पे बात कर रहा है, टेक्स्ट पे बात कर रहा है, या फिर आमने सामने बात कर रहे हैं। द चैनल थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, एग्जाम्पल स्पीच, टेक्स्ट और विजुअल्स। ओके, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हो, या फिर आप आपने आमने सामने बात कर रहे हो, या फिर आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड मीडियम। देन रिसीवर, द पर्सन और ग्रुप फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड, आप किसको मैसेज दे रहे हो वो रिसीवर होता है। देन फीडबैक, द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर विच कंप्लीट द कम्युनिकेशन लूप। फीडबैक आना जरूरी है, आपने किसी को कुछ कहा, उसने कुछ फीडबैक ही नहीं दिया, तो कम्युनिकेशन आधा अधूरा रह जाता है। हम बोलते हैं ना, सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा, मतलब उसको समझ में नहीं आया। जब उसको वो समझ में आता है तो वो फीडबैक जरूर देता है, हाँ मुझे समझ में आया, मैं ऐसा करता हूँ या फिर करती हूँ। ओके, द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर विच कंप्लीट कम्युनिकेशन लूप, एक लूप क्रिएट हो जाता है इस कम्युनिकेशन का फीडबैक से। ओके, एंड कंटेक्स्ट, द एनवायरमेंट और सिचुएशन इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। ओके, कंटेक्स्ट बहुत जरूरी है, आप किस एनवायरमेंट में कम्युनिकेशन कर रहे हो। सपोज आपकी टीचर आपके क्लासरूम पे गुस्सा है, ओके, और आप जाके बोल रहे हो कि हमें छुट्टी चाहिए, तो टीचर आपको डांट देगी ना। वो एनवायरमेंट उसके लिए मतलब वो सिचुएटेड नहीं है ना, वो एनवायरमेंट प्रॉपर नहीं। जब आपकी टीचर गुस्सा ना हो, अच्छे मूड में हो, तो अब आप बोल सकते हो कि हमें छुट्टी चाहिए। ओके, इस तरह से context is the main component of communication. Then types of communication, there are 2 types of communication, verbal and non-verbal. Let's see verbal first. Verbal communication using words and sound to transmit information. ओके, वर्बल कम्युनिकेशन में हम सिंपली वर्ड्स यूज करते हैं या फिर लैंग्वेज यूज करते, लैंग्वेज आई तो वर्ड्स भी आते हैं। देन लेट्स सी सम एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर एंड डायरेक्ट, यू कैन एक्सप्लेन योर थॉट क्लियरली विथ वर्ड्स। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन हम सीधा बात कर सकते हैं, ओके, वर्ड्स यूज करके। देन क्विक रिस्पॉन्सेस,
यू कैन गेट इमीडिएट आंसर्स और फीडबैक, हम बात कर रहे हैं तो आप भी रिस्पॉन्स क्विकली कर सकते हो, दीज आर एडवांटेजेस. देन इमोशनल कनेक्शन, टोन एंड वॉइस कैन शो फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस और सैडनेस. इमोशनल कनेक्शन भी दिखता है, हम बात कर रहे हैं तो हम किस टोन में बात कर रहे हैं वो आपके इमोशंस दिखाता है, आप सैड हो, हैप्पी हो, या फिर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स दिखाता है, हैप्पी, सैड, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फास्ट कम्युनिकेशन, टॉकिंग इज ऑफन क्विकर देन राइटिंग, मतलब बात करना लिखने से बहुत ही फास्ट होता है. देन फ्लेक्सिबल, यू कैन एडजस्ट योर वर्ड्स बेस्ड ऑन हाउ अदर रिएक्ट्स. ओके, फ्लेक्सिबल होता है, आप थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, आप उनको एडजस्ट कर सकते हो. देन टीम वर्क, इट एनकरेज ओपन डिस्कशन एंड आइडिया शेयरिंग. सपोज आपके कॉलेज में आप बात कर रहे हो, ओके, आपके फ्रेंड्स के साथ आप बातें कर रहे हो, तो वो उनके आइडिया शेयर करते हैं, आप आपके आइडिया शेयर करते हो, ओके, टीम वर्क होता है उसमें. देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस. ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में वर्ड्स नहीं यूज किया जाता, क्या यूज किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज, गेस्टर्स मतलब आप हाथों से कुछ इशारा कर सकते हो, और फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब आप कुछ लोग होते हैं ना, मतलब जब कुछ ऐसा चल, सपोज किसी की मीटिंग चल रही है उसमें बोलना नहीं होता, तो आप फेशियल एक्सप्रेशन से भी किसी को कुछ कह देते हो. ओके, लेट्स सी सम एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Gestures and expressions help make your message stronger. ओके, मतलब आपका मैसेज स्ट्रांगली जाता है उसके बाद गेस्टर्स एंड एक्सप्रेशन की हेल्प से. बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस रिवील ट्रू इमोशंस एंड यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ विदाउट स्पीकिंग. ओके, so these are types of verbal communication. Verbal and non-verbal communications are two types of communication. Okay, let's revise it. So first we see communication, what is meant by communication, then we see some key elements of effective communication, then we see importance of communication, then we see components of communication, then we see types of communication and their advantages. Okay, so alright, sorry, ये thanks for watching this slide in याद की. Okay, sorry for that. Okay, so this is sufficient for today's lecture. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends of BCS or BCA. Okay, if you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कि स्टैटिस्टिक, पाइथन प्रैक्टिकल शुरू करो, अगले हफ्ते में, अगले वीक में चालू हो जाएंगे. ओके, I will upload this video in next week. Okay, so this is sufficient for today. If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, and for notes section, please join Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. Okay, so that's it for today. Till then, tatas, bye bye.